our esteemed guests. Now we'll begin with auspicious occasion with the traditional lighting of the lamp, signifying wisdom and knowledge. May I request our esteemed guest, university officials and faculty member to please come forward and light the lamp. Thank you very much to our dignitaries for performing the initiative created to raise awareness about how vital standards are in our life. This program, run by the Bureau of Indian Standards, ensure that we live in a world where the product and services we rely on daily meet strengths, quality and safety standards, whether it's the quality of construction materials or even the purity of gold. BIS ensures that what reaches us is trusted, tested, and true. We are incredibly fortunate to have with us distinguished professionals from the Bureau of Indian Standards, Noida, who are leading this movement towards a better, safer, and more standardized future. I would like to introduce Mr. Sachin Verma, Swarnakar Sir, National Coordinator, Navdeep Samajik Vikas Sansthan, Bharat. Now I would like to introduce Mr. Akash Kumar Yadav Sir, Senior Secretariat Assistant, BIS Noida, Branch Office. Now I would like to introduce Mr. Amardeep Jaiswal Sir, Standard Promotion Officer, BIS Noida, Branch Office. Greetings from Vikrant Sir. Let's show them our appreciation with a big round of applause. And now it's my pleasure to invite Vikrant University official to present bouquets and mementos to our esteemed guest. May I kindly request Senior University Officer, I would like to welcome our Vice Chancellor Sir to give memento. थैंक यू बहन। आज के हमारे कार्यक्रम मानक मित्र एंड अवेयरनेस प्रोग्राम में उपस्थित हुए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नोएडा के ऑफिशियल्स, श्री सचिन वर्मा साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर, श्री आकाश कुमार जी, अमरदीप जायसवाल जी और सभी साथी मेंबर्स, आप सबका विक्रांत परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे आज के BIS के हमारे वॉलंटियर्स, सभी स्टूडेंट्स का भी आज के इस सभागृह में, आज के कार्यक्रम में आप सभी का भी स्वागत है।
आज का ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब आए दिन हम मानक को लेके या हम बात करें प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर हर दिन कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से आज ऑफिसर्स आए हुए हैं जो आज हमें अवेयर करेंगे कि किसी भी वस्तु या उत्पादक की जो क्वालिटी के पीछे क्या क्या हमारे वर्क होना चाहिए या क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या इंडियन स्टैंडर्ड है, चाहे बात सेफ्टी की हो चाहे बात क्वालिटी की हो। हमारे जो एक रेगुलर लाइफस्टाइल में इसमें इन सभी का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। आज आपको समझ में भी आएगा ये कि हमें किसी भी उत्पाद को परचेज करते टाइम, खरीदते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कहीं अनजाने में ऐसा तो नहीं कि हम कोई गलत या नकली प्रोडक्ट को हम ले रहे हैं जिससे कि हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे कहना चाहिए हमारे स्टैंडर्ड या हम बात करें कि हमारी जो रोजमर्रा की जो लाइफ है उस पर तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो एक बार फिर मैं हमारे आज के सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आज का आपका ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस रहेगा और हमारे बच्चे कुछ नया आज यहाँ से लेकर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। We will proceed for the program. I would like to call the Bureau of Indian Standards would like to present a token of appreciation to our Vice Chancellor Sir, Registrar Sir and Director Sir. I kindly request the BIS official to do the honors. In the main event, we are about to hear from the experts themselves, the officials of BIS, who will take us through the transformative power of standards in modern life. This presentation will provide a deep dive into how standardization affects industries, communities, and our daily lives. Over to our BIS representatives. Please come on stage to share your opinions and point of views. A very good afternoon to all. My name is Akash. मैं BIS में सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट पे हूँ. Basically, I look in the promotional activities and administration work of BIS. So before I start anything, I would like to thank Vice Chancellor Sir, Director Sir, Pathak Sir, and all the entire administration of Vikrant University and all the students that are involved here. I'm really glad to see so many enthusiastic students, participating in such a great initiative given by the government. So before I start, I would like to know, does anybody know about Indian standard, what it is? IS क्या है, BIS क्या है? किसी को इसके बारे में पता है? कोई बता सकता है? जी। सर, भारतीय सरकार द्वारा एक ब्यूरो बनाया गया है जिसमें सर कुछ ऐसे मानक निर्धारित किए गए जिससे हम किसी चीज की क्वालिटी और अच्छी या असली है या नकली है या किसी को कॉपी तो नहीं, इन चीजों का पता लगा सकते हैं। बहुत जो बोलने वाले लोग हैं वो इन चीजों की फ्रॉड जी बिल्कुल सही कहा। और कोई जो बताना चाहेगा? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, जब इंडिया आज़ाद हो रहा था 1947 में, तो ये हुआ कि जितने भी हमारे देश भर में सामान बन रहा है, जितना भी उत्पाद हो रहा है, सर ने भी बताया, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है देश भर में किसी भी चीज को लेके, अदर देन फूड मटेरियल, ऑल द थिंग्स दैट आर गेटिंग बिल्ड सच एज इलेक्ट्रिकल आइटम्स, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल रिलेटेड आइटम, टेक्सटाइल रिलेटेड आइटम, एवरीथिंग रिक्वायर्ड एन इंडियन स्टैंडर्ड। कि आखिर में अब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो हमारे जो गवर्नमेंट है वो हमारे आम नागरिक के लिए क्वालिटी एश्योर करने के लिए क्या कर रही है। तो उस समय इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI स्थापित हुआ, जो कि बाद में 1986 में BIS के फॉर्म में BIS बन गया। तो BIS का मेनली ये काम है कि जितना भी देश भर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी चीज में, उसमें क्वालिटी एश्योर करना, लोगों को जितनी भी कंपनीज हैं ऑल ओवर इंडिया उनको लाइसेंस देना और उन लाइसेंस के तहत उनका सैम्पलिंग करना और उनके क्या कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी चेक करते रहना टाइम टू टाइम। इस चीज को गहराई में अभी सचिन सर बताएंगे। सो आई वुड लाइक टू कॉल सचिन सर टू प्रेजेंट द ओवरव्यू ऑफ BIS। Thank you so much and good afternoon to all. We
विक्रांत यूनिवर्सिटी के इस पावन प्रांगण में यहाँ उपस्थित वाइस चांसलर सर, डायरेक्टर सर, पाठक जी और तमाम आप सभी स्टूडेंट्स जो इस पावन प्रांगण में एक अच्छी शिक्षा लेने के लिए यहाँ हैं, और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप सभी BIS के इस कैंपेन का हिस्सा हैं। ये कैंपेन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। अभी आकाश जी ने आपसे पूछा BIS के बारे में कौन जानता है, तो आपने बताया, कुछ स्टूडेंट ने अपना वक्तव्य दिया। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि BIS के साथ साथ अभी जैसे एक स्टूडेंट ने कहा कि हम इसकी क्वालिटी को चेक करना समझ सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो कैसे चेक कर सकते हैं इस बारे में कौन बताएगा? एक BIS ने आपको एक व्यवस्था दी है वस्तुओं को चेक करने की, तो कौन बताएगा? आप भी बताइए। तो जैसे तो लोग कुछ लोगोस होते हैं, अगर फूड गाइड है उसमें पे FSSAI का लोगो होता है। हाँ। और फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो सेफ्टी अप्लायंसेस होती है उसमें ISI का मार्क होता है, और फिर IS नंबर और एक 8 नंबर करके भी होता है। हाँ। इन नंबर को कैसे चेक कर सकते हैं ये नहीं पता, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको जानना कि अगर, क्योंकि लोगों की अगर बात है तो लोगों कॉपी पेस्ट भी किए जा सकते हैं। आप सब जानते हैं अब कंप्यूटर का युग है। तो मेरी आवाज पहुंच रही है पीछे तक, है ना? ठीक है। मैं चाहूंगा कि मैं कोई जानकारी आपको दूं, बाई चांस आपको समझना है तो मुझसे पूछिएगा, एक बार मैं रिपीट करूंगा, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करने आए हैं, हम आपको एक बेहतर जानकारी देने आए हैं। क्योंकि आपको जिस अभियान का हम हिस्सा बनाना चाहते हैं उसके लिए प्रत्येक छात्र को ये जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप यहाँ की जानकारी मिस कर देंगे तो जो हमारी अपेक्षा आगे की है आपसे कि आप समाज को जागृत करें जाके, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोग यहाँ एक फैमिली की तरह बैठे हैं और कोई भी हेजिटेशन नहीं करेंगे कि मैं पूछूंगा तो और साथी मुझ पे हंसेंगे, या इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हमेशा पूछने वाले लोग ही आगे जाते चले जाते हैं, ये मेरा अनुभव है। तो मैं चाहूंगा कि आप फॉलो करें अच्छे से मुझे और समझें कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसा आकाश सर ने आपको बताया, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो का जो प्रमुख कार्य है वो बाजार में वस्तु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना और एक उपभोक्ता के तौर पर हमारे कानूनी अधिकारों का संरक्षण करना है। हम लोग जब भी बाजार में जाते हैं कुछ भी खरीदारी करने, तो हम क्या होते हैं वहां पर? उपभोक्ता, कंज्यूमर, है ना? हम चाहे जिस भी प्रोफेशन में है, चाहे हमारे डायरेक्टर सर हैं, चांसलर सर हैं, या आप स्टूडेंट हैं, आपके पेरेंट्स हैं, हम जब भी बाजार में जाएंगे खरीदारी करेंगे वहां पर हम होते हैं उपभोक्ता, ठीक है? और उपभोक्ता के तौर पर हम कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो हमारी ये अपेक्षा रहती है, हम हमेशा ये सोच के कोई वस्तु खरीदते हैं कि इसकी क्वालिटी ऐसी निकले जो अच्छे टाइम तक चले, और जैसी हमें उम्मीद है। कोई पानी पी रहे हैं हम लोग अगर, तो वो ऐसा होना चाहिए बिल्कुल जो शुद्ध हो, हमारे शरीर को किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाए, है ना? अच्छा, कभी बोतल से पानी पीते हैं आप, खरीद कर पीते हैं ना? अच्छा, उसमें क्या चेक करते हैं? कुछ चेक करते हैं कि क्या देखते हैं वो पानी पीते समय? क्या चेक करना चाहिए? अच्छा, ओके। और ब्रांड भी देखते होंगे, बिस्लरी जैसे यहाँ रखा है तो बिस्लरी को ही देखते होंगे कि भाई बिस्लरी होगा तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, है ना? ऐसा होता है। लेकिन मैं आपकी एक भ्रांति जरूर दूर करूंगा कि हमें ब्रांड नहीं देखना है, हमें देखना है BIS का सर्टिफिकेशन, ठीक है? वो चाहे जिस भी ब्रांड के प्रोडक्ट पे हो, अगर वो सर्टिफाई है BIS द्वारा तो आप उसको बिल्कुल निसंकोच होकर खरीद सकते हैं। ये प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूं कैसे चेक कैसे करना है। उसके लिए आप सभी स्मार्टफोन यूजर हैं, अभी जो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाना बंद करके एक बार अपने प्ले स्टोर में जाएंगे, प्लीज प्ले स्टोर में जाएंगे और एक हमारा ऐप है BIS केयर, प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे तो जो ये
लोगो आपके कैप पर छपा है, ऐसा दिखाई देगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए उस फोन में। BIS केयर ऐप, ऐसा नीला लोगो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, जिसके द्वारा कि वस्तु जो हम खरीद रहे हैं वो वास्तव में BIS द्वारा ओरिजिनली सर्टिफाइड है कि नहीं, ठीक है। अब कैसे करेंगे, मैं क्वालिटी कनेक्ट अभियान पे थोड़ा सा कुछ देर बाद आता हूं, क्योंकि ये पार्ट आपको जानना बहुत जरूरी है कि BIS आपके लिए करता क्या है, ठीक है। तो ISI मार्क को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं, ठीक है। और ये ISI मार्क को हम इसलिए भी जानते हैं, आप अपने पिताजी माता पिता से भी पूछोगे तो वो भी ISI मार्क को जानते हैं। उसका कारण यह है कि अभी आकाश जी ने भी बताया, भारतीय मानक ब्यूरो का गठन जब हमारा देश आजाद हुआ और पहली सरकार बनी, उसी दौरान कर लिया गया था, क्योंकि वस्तु की गुणवत्ता को प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण माना गया, ठीक है। इसलिए उस समय इसका नाम ISI ही हुआ करता था डिपार्टमेंट का, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। लेकिन जैसा कि आकाश जी ने बताया, बाद में इसका नाम बदला गया और ये BIS हो गया। तो इसलिए सभी लोग इसको ISI के नाम से परिचित रहते हैं कि ISI कुछ होता है। अब ISI को हम वस्तुओं पर लगा देखते हैं, सभी लोग देखते होंगे, लेकिन हम उसको देखते तो हैं, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते कि ये लगा है तो क्यों लगा है ना। उसका एक कारण है लगने का, और वो कारण यह है कि ये वस्तु BIS द्वारा जांची परखी गई है, उसके बाद उस पर ISI मार्क लगा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी आवश्यकता देखते हैं, सामने वस्तु देखते हैं और उसका मूल्य देखते हैं, उस पर बार्गेनिंग कर लेते हैं और उसको खरीद लेते हैं और यूज कर लेते हैं, ठीक है। हम कभी नहीं देखते कि ISI मार्क है तो क्यों है, उसका अर्थ क्या है। तो मैं आपको समझाता हूं कि भारतीय मानक ये ISI को कैसे हमें चेक करना है। तो BIS केयर ऐप सभी का इंस्टॉल हो गया है, खुल गया है, ठीक है। उस पर एक पेज खुल रहा होगा, वहां पर सबसे पहले नीले रंग का ISI मार्क बना होगा, बना है बना है ना, ठीक है। तो ये जो पानी है, ठीक है, पानी की बोतल बिस्लरी आप देख रहे हैं, लेकिन मैं कभी पानी खरीद कर पीता हूं तो मैं बिस्लरी नहीं देखता, मैं क्या देखता हूं, इस पर लगा हुआ ISI मार्क, आपको भी दिख रहा होगा दूर से, ठीक है। तो आपने वहां पर अपने ISI पर क्लिक किया, क्लिक कीजिए, उसको कर लिया, वो आपसे पूछ रहा है R नंबर, है ना, पूछ रहा है R, एक बॉक्स आया होगा, किसी का खुला है, ऐसे करके दिखाइए। अच्छा, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है। देखिए इस तरह से खुलेगा और ये दिखा पूछेगा आपसे CML नंबर, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, इस ISI मार्क को देखना है और इसके ठीक नीचे देखना है CML नंबर, ठीक है। अभी किस किस का खुल गया है, सही है, हाँ आपका खुल गया है ना। CML पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे नंबर पूछेगा, मैं इस पानी का नंबर आपको बता रहा हूं, इसी का जो मुझे यहां पे रखा मिला है, ठीक है। आप लिखेंगे 8800121718। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 8800121718, ठीक है। अब आप इसको सर्च कीजिए, ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको देगा, खुल गया ना। अभी ये आपको बता रहा है उसका बनाने वाले कंपनी का नाम, मैन्युफैक्चरर का नाम, उसका पूरा पता बता रहा होगा, IS नंबर बता रहा होगा। IS के बारे में एक बात बता दूं कि IS का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड। भारतीय मानक ब्यूरो का नाम भारतीय मानक ब्यूरो इसलिए है कि ये प्रत्येक वस्तु के लिए मानक बनाता है, ठीक है। इस पानी के लिए भी मानक बने हैं और वो इसलिए बने हैं, और उसका कारण यह है कि ये पानी इस प्लास्टिक की बोतल में महीनों तक बंद रहता है, ऐसा ही है ना। अच्छा, जब हम घर पर पानी पीते हैं अपने किचन में, तो कैसे किचन में पानी, पहले तो हम सुबह भरते हैं, आपकी माताजी भरती होंगी पहले, फिर वो दिन भर यूज होता है, अगला दिन जब आता है तो उसको बासी पानी कहकर फेंक दिया जाता है, या कपड़े के काम में या बर्तन के काम में लेते हैं, लेकिन पीने के लिए फिर फ्रेश वाटर भरते हैं दोबारा, ठीक है। तो फिर फ्रेश वाटर पीते हैं आप, लेकिन इस पानी को आप महीनों महीनों रखे हुए को भी पी लेते हैं, है ना।
तो क्यों पी लेते हैं? क्योंकि इसको BIS ने इसकी क्वालिटी को इंश्योर किया है। ये पानी किसी भी प्रकार से आपके लिए नुकसानदायक नहीं हो सकता यदि ये आपको ये ISI मार्क के माध्यम से सर्टिफाई है। तो IS का नंबर इंडियन स्टैंडर्ड और प्रत्येक वस्तु के लिए मानक बना है। इसके लिए जो BIS ने मानक बनाया है उसका नंबर है 14543, उस पर आ भी रहा होगा लिखा हुआ। और जब भी आप ISI मार्क देखेंगे तो खाली मार्क नहीं देखना है, मार्क ये जब पूरा होता है जब इसके ऊपर होता है IS नंबर और इसके नीचे होता है CML नंबर, वो ISI मार्क होता है पूर्ण मार्क। अगर कहीं भी खाली आपको ISI मार्क लगे तो आप उस पर भरोसा मत कीजिएगा। उस पर IS नंबर भी होना चाहिए और उसके नीचे CML नंबर होना चाहिए। और CML नंबर को खाली देखना नहीं है, क्योंकि कॉपी पेस्ट जो ISI मार्क को कर सकता है वो इसको भी कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि इसको चेक जरूर करना है। और चेक करने के लिए आपको क्या देखना है, अपने फोन की इंफॉर्मेशन आपको वहां पे दिख रहा होगा कि वो इंफॉर्मेशन पानी के बारे में ही है, लिख रहा है ना, ड्रिंकिंग वाटर लिखा हुआ है। तो अगर ये डिटेल मैच होती है तो ही हमें उसको भरोसेमंद मानना है अथवा नहीं मानना है। और इसमें सबसे खास बात आपको दिखाई दे रही होगी नीचे कि उसका स्टेटस आ रहा है, करंट स्टेटस ऑपरेटिव, हरे रंग से दिखा है। अगर स्टेटस ऑपरेटिव है तो भी हमें उसे खरीदना है, अन्यथा बिल्कुल नहीं खरीदना है। क्योंकि BIS लाइसेंस देने के बाद भी किसी को उसका समय समय पर इंस्पेक्शन करता है। अगर इंस्पेक्शन के दौरान ऐसा पाया जाता है कि मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है उस मैन्युफैक्चरर के द्वारा, तो उसका लाइसेंस भी या तो सीज कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में स्टेटस लाल रंग से आता है, उसी तरह का लाइसेंस सीज्ड या कुछ भी एनीथिंग। तो इसमें जब भी आपको स्टेटस अगर ऑपरेटिव आए चेक करने के दौरान, तो ही आपको उस वस्तु को खरीदना है अथवा नहीं खरीदना है। ये उदाहरण मैंने पानी के लिए दिया है, लेकिन ISI मार्क अधिकांश प्रयोग करने वाली वस्तुओं पर होता है। ठीक है, तो आपको उस पर किसी भी वस्तु जो भी आप मार्केट से खरीदेंगे उस पर कोई ना कोई मार्क होता है, या तो ISI मार्क या CRS मार्क। इलेक्ट्रॉनिक ये लाइट जल रही है, इस पर एक CRS मार्क होता है। तो वो कैसा होता है? BIS केयर ऐप आप देख रहे हैं, उसमें मैं आपको बता दूं एक बार, ये ऐप है, ये ISI मार्क है जो भी आपने चेक किया। ये जो होता है ये CRS मार्क होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान पर होता है बेसिकली, जैसे ये लाइट जल रही है या ये प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है, ठीक है, कंप्यूटर है, इस तरह की चीजों पर यही वाला मार्क यूज होता है। जैसे ISI मार्क के नीचे होता है CML नंबर, ऐसे ही इसके नीचे होता है R नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो आपको ऐसे उसको चेक करना है, वो भी आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा और उसका भी स्टेटस आएगा, ऑपरेटिव या जो भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको चेक करना होता है। अब इन दोनों मार्क के बाद मैं आपको बात करूंगा ज्वेलरी पर लगने वाले हॉलमार्क की। आप लोग सुना होगा आपने, गोल्ड पर हॉलमार्क लगता है, सभी ने सुना है। ठीक है, लेकिन अब ये जो हॉलमार्क वाली बात है, अब ये हॉलमार्क वाली बात पुरानी हो गई। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से भारतीय मानक ब्यूरो ने हॉलमार्क की व्यवस्था को बदल दिया है। क्या आपको इस बात की जानकारी है? नहीं जानकारी है। और ये जानकारी आपको बहुत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश ज्वेलर्स आपको धोखा दे रहे हैं और आपको जो है चूना लगा रहे हैं, आपके माता पिता की जो गाड़ी कमाई है जो वो खरीदने जाते हैं। अब अभी आप लोग स्टडी में हैं, लेकिन जब आप शादी लायक हो जाएंगे, आपकी शादी ब्याह के बारे में आपके पेरेंट्स सोचेंगे, तो ज्वेलरी जरूर बनवाएंगे, चाहे तो बिटिया को देने के लिए या बेटे की बहू को देने के लिए। ठीक है, तो वहां पर आपको आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताकर जा रहा हूं ज्वेलरी के बारे में। इसको आप हमेशा माइंड में रखिएगा। अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो उसको नोट भी कर लीजिएगा, कुछ अच्छा लगे तो आप मेरी बात। और तो ज्वेलरी के बारे में बात यह है कि अधिकांश हम किसी ना किसी ज्वेलर से जुड़े रहते हैं और उस ज्वेलर को हम अपने घर परिवार का सदस्य मानते हैं कि ये हमारे घर का सुनार है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो जब भी हम ज्वेलरी खरीदने दुकान पर जाते हैं तो हम उनसे सबसे पहले क्या पूछते हैं कि आज गोल्ड का रेट क्या है, ऐसे पूछते हैं नेचुरली। किसी भी सामान को खरीदने से पहले उसका रेट पूछते हैं। तो उदाहरण के तौर पर आज का गोल्ड का रेट है 76,000 लगभग। ठीक है, 76,000 प्रति 10 ग्राम। ठीक, तो ज्वेलर आपको बोलते हैं कि
76,000 का रेट है, तो आपके पिताजी बोलेंगे, माता पिता बोलेंगे कि भाई हमारे लिए कुछ कम लगाओ, हम पुराने ग्राहक हैं आपके, तो कहेंगे ठीक है आपके लिए 1-2 हजार कम लगा लेंगे, कोई बात नहीं, है ना, ऐसे ही होता है। तो उस 1-2 हजार के कम करने से ही आप उनको अच्छा मानते हुए उनसे कुछ खरीद लेते हो या उन्हें कोई ऑर्डर दे देते हो, ठीक है, ऐसे ही होता है। लेकिन एक तो मैं ये बता दूं कि भारतीय मानक ब्यूरो ने ज्वेलरी में कैरेट की व्यवस्था दी है, ठीक है, और उस कैरेट को BIS अलग अलग तरीके से सर्टिफाई करता है। आपने सुना होगा 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, लेकिन आप इस कैरेट को तो सुनते हैं लेकिन रेट दे देते हैं 24 कैरेट। जो 76,000 होता है वो रेट होता है 24 कैरेट का, लेकिन ज्वेलरी होती है कम कैरेट की, तो वहां पर आपको नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस कैरेट की व्यवस्था को भी समझना है और इसकी प्योरिटी को टेस्ट करना भी जानना है, ठीक। तो रेट की बात अगर करेंगे वो बात की बात है, पहले मैं क्वालिटी की बात चूंकि हम लोग कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक ज्वेलरी, एक कंगन, ठीक है। तो BIS कैसे गोल्ड में क्वालिटी को इंश्योर करता है ये आपको समझना है। आप हॉलमार्क को तो आप जानते थे, सुना था आपने, मैंने आपको बताया कि वो व्यवस्था बदल दी गई है। हॉलमार्क पहले 5 निशानों के साथ होता था। मैं एक बार यहां पर आ रहा हूं, मेरी आवाज आ रही होगी अभी भी? ये जो निशान लगे हैं ये होती है हॉलमार्किंग यहाँ पर, और ये हमेशा ज्वेलरी के पीछे की तरफ रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला निशान हमेशा ये होता था, पहले भी और आज भी यही है, ये है BIS का लोगो, ठीक है, जो होता है ये ट्राइएंगल। उसके बाद लिखा जाता है कैरेट का कोड, उसके बाद ये हॉलमार्क सेंटर का कोड और ये ज्वेलर का आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो ये इस तरह से होता था पहले हॉलमार्क, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, ये भरोसेमंद नहीं रहा, और ये भरोसेमंद इसलिए नहीं रहा, ये एक लेजर मशीन के माध्यम से प्रिंट किया जाता है। BIS ने अपने इंस्पेक्शंस में कई बार ये पकड़ा कि जो उसकी वस्तु की क्वालिटी है, जितना उस पर हॉलमार्किंग किया गया है वो उतनी नहीं है प्योर। तो ऐसे में ये पाया गया कि आपका ज्वेलर आपको ही धोखा दे रहा है, मतलब वो आपसे पैसा ले रहा है 24 कैरेट का और वस्तु को बता रहा है 22 कैरेट की या 20 कैरेट की, और वो उसकी प्योरिटी निकलती है 18 कैरेट या 14 कैरेट। तो इस तरह की धोखाधड़ी इस सेक्टर में होनी शुरू हो गई। उसके बाद BIS ने क्या किया, इस सर्टिफिकेशन की व्यवस्था को बदल दिया और इसको कुछ इस तरह से कर दिया गया है कि ये पहला निशान अभी भी वही है जो पहले था। अब ये व्यवस्था ये हो गई है नई व्यवस्था, जिसको बोलते हैं हम HUID। अब हॉलमार्क नहीं जानना है आपको, अब आपको जानना है HUID, यानी कि हॉलमार्क विद यूनिक ID, ठीक है। तो यूनिक ID के साथ इसका सर्टिफिकेशन होता है। ये 3 निशान आपको जरूर ज्वेलरी पर देखने हैं। पहला निशान BIS का लोगो, दूसरा निशान कैरेट का कोड, यहाँ 22 के 916 लिखा है। उसके लिए मैं आपके स्टाफ को कुछ ऐसे चार्ट दे दूंगा जो अलग अलग कैरेट को बताते हैं। अगर ये 20 कैरेट होगा तो यहाँ लिखा जाएगा 20 के 833। अगर ये 18 कैरेट होगा तो लिखा जाएगा 18 के 750। अगर ये 14 कैरेट होगा तो लिखा जाएगा 14 के 585। तो इस तरह से जो कैटेगराइज BIS ने किया है ज्वेलरी को, तो वो इस तरह का यहाँ पर कोडिंग लिखा रहता है कैरेट के बारे में। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण निशान, इस पर विशेष आपको ध्यान देना है। और क्या ध्यान देना है, ये हमेशा 6 अंकों में होता है। अब आप सोचेंगे 6 अंक तो ये भी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मत रुक जाना, तीसरे निशान के 6 अंकों को ध्यान दीजिएगा, है ना। ये भी 6 है, ये भी अल्फा न्यूमेरिकल है और ये भी ऐसे ही होंगे, लेकिन आपको तीसरे वाले निशान पर ध्यान देना है। ये कैरेट कोड है, इसको आप पहचान लीजिएगा हमेशा कि कैरेट कोड ही होता है। इस पे आप ध्यान देंगे, ये 6 अंकों में लिखा होगा तीसरे निशान के रूप में। तो क्या करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कई बार ये ज्वेलरी पर बहुत बारीक बारीक सा लिखा दिखाई देता है, तो आप लोग क्या करते हैं कि क्योंकि आप उसको नहीं देखना चाहते, आप उसको इसलिए नहीं देखना चाहते क्योंकि आपकी आंखों पर एक चश्मा चढ़ा रहता है ज्वेलर्स पर अटूट और अंधविश्वास का। आप ये मानते हैं कि जो ज्वेलर हमें दे रहा है घर का आदमी है, सही दे रहा होगा, तो इस तरह से आप इसको देखना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अगर धोखे का शिकार नहीं होना है तो आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं
कि ज्वेलर्स का जो बेईमानी का कॉन्फिडेंस है सबसे बड़ा, वो ये है कि जो ज्वेलरी आप द्वारा खरीदी जाती है वो लौटाई नहीं जाती है। ठीक है, तो अब आप खुद जानते हैं, आप भी जानते हैं सर कि आपने कितनी ज्वेलरी खरीदी है अब तक और कितनी लौटाई है। लौटाने वाली मात्रा जो है वो बहुत कम रहती है। तो यहां ज्वेलर्स का एक कॉन्फिडेंस रहता है कि ठीक है कैसी भी दे दो, विश्वास तो है ही, और कहीं जब आएगी लौट के जब देखा जाएगा, तो ये उनका कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन हमें उन चीजों से बाहर निकलना है, हमें BIS के इस व्यवस्था को समझना है, इस तीसरे निशान को हमें समझना है, जानना है। और कैसे जानेंगे, यहां पर अब BIS केयर ऐप मैंने आपको इंस्टॉल कराया है, आप एक बार उसको फिर खोल लेंगे और बीच में एक HUID टेस्ट करने के लिए व्यवस्था दी गई है, उसको खोलेंगे। खुल गया है किसी का? वेरीफाई HUID लिखा है। अब जैसे CML पूछ रहा था ISI मार्क, है ना, तो ये पूछेगा क्या, HUID का नंबर। अब HUID का एक डेमो मैं आपको बता रहा हूं, आप लिखेंगे, एक कोड में आपको बताता हूं, आप लिखेंगे M1LWGF, M1LWGF, इसको आप सर्च करेंगे एक बार, खुल गया है। यहां पर आप देख सकते हैं आ रहा है ज्वेलर का लाइसेंस नंबर। ठीक है, यहां पर खास बात समझने की यह है कि BIS ने इस व्यवस्था को लागू कराने से पहले पूरे देश के ज्वेलर को यह निर्देशित किया है कि आप BIS से पंजीकरण कराए बिना अपनी ज्वेलरी का कारोबार नहीं करेंगे, वो कारोबार अवैध श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है, तो BIS प्रत्येक ज्वेलर को अपने यहां रजिस्टर करता है, उसके बाद उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहां पर पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो यही नंबर है जो BIS से रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है उस हॉलमार्क सेंटर का नाम जिसने इसको सर्टिफाई किया है कि यहां प्योर, उतनी प्योर है जितना इस पर लिखा है। ठीक है, उसके बाद उसका लाइसेंस का डिटेल होगा, वो उस हॉलमार्क सेंटर को BIS ने ऑथराइज किया है तो उसका लाइसेंस नंबर दिया गया है। उसके बाद वहां पर उसका पता भी आ रहा होगा, लिखा हुआ गाजियाबाद लिख रहा है ना, तो ये गाजियाबाद का कोई हॉलमार्क सेंटर है। उसके बाद वस्तु का नाम आ रहा होगा ज्वेलरी का, क्या लिखा रहा है, चेन। यस, अब जैसे ये बेंगल है तो जब आप बेंगल को चेक करेंगे तो बेंगल लिखाएगा, चेन को करेंगे चेन लिखाएगा, ईयर रिंग को करेंगे ईयर रिंग आएगा, रिंग को करेंगे रिंग आएगा। तो यहाँ पर BIS इसको उसको ज्वेलरी का नाम भी मेंशन करता है। ठीक है, और अच्छा जानकारी अच्छी लग रही है ना, एकदम नई है ना। हाँ, ये बहुत काम किया आपके लिए, ध्यान रखना आज के बाद जब भी ज्वेलरी खरीदो इसी एंगल से खरीदिएगा। तो उसके बाद क्या आ रहा है, ज्वेलरी के नाम के बाद इसको कब सर्टिफाई किया गया है उसकी डेट आ रही होगी। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है। ये आपको डेट इसलिए देखनी है कि कई बार हम ज्वेलरी को ऑर्डर देकर बनवाते हैं। ठीक है, तो हमने आज ऑर्डर दिया तो डेट कब की आएगी, आज के बाद की, और जब आप चेक कर रहे होंगे तो पता चला वो तो कई महीनों पुरानी डेट डली हुई है। भाई जब ऑर्डर हम आज दे रहे हैं कोई डिजाइन पसंद करके, वो बनेगा फिर हॉलमार्क सेंटर जाएगा तभी तो सर्टिफाई होगा। तो यहां भी ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई ऑर्डर से सामान बनवा रहे हैं तो डेट अब बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए, और अगर आप स्टॉक में से कोई खरीद रहे हैं चीजें, जैसे गए पसंद की डायरेक्ट, उसकी डेट पुरानी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे नीचे क्या आ रहा है, 20K833, जैसा मैंने आपको बताया 20 कैरेट 833, 20 कैरेट में ये कोड रहता है। तो आपने 20 कैरेट की प्योरिटी की ज्वेलरी को टेस्ट किया तो वहां पर उसका डिटेल आ रहा है। आप ऐसे ही 22 कैरेट को चेक करेंगे उसका डिटेल आएगा, आप अगर 18 को करोगे तो उसका डिटेल आएगा। ठीक है, तो ये डिटेल मैच करनी चाहिए। अगर ज्वेलर बोल रहा है 22 कैरेट है लेकिन अगर अपना ऐप बता रहा है कि ये 22 नहीं है, तो आपको चुप नहीं रहना है, उसकी कंप्लेन भी करनी है। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे कोई ज्वेलर आपको धोखाधड़ी करता है तो उसकी कंप्लेन भी आपको इसी ऐप के माध्यम से करनी है। इसमें कंप्लेन का ऑप्शन भी आप देख रहे होंगे बीच में। अगर ऐसे कोई चीज पकड़ में आती है तो आप उसकी कंप्लेन करें, BIS उस पर एक्शन लेगा, एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, तो समाज से बेईमानी धीरे धीरे कम होगी। क्योंकि एक्शन होता है तभी तो डर पैदा होता है ना। अब जैसे पुलिस एक्शन लेती है तो अपराधियों में डर होता है, तो इसी तरह से ये चीजें
कानून का पालन यदि होता है तो व्यवस्था में अपने आप सुधार आता चला जाता है। 2-4 ज्वेलर के खिलाफ कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से सारे और भी सुधरने की कोशिश करेंगे, ईमानदारी आ जाएगी। तो इसके लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, एक कंज्यूमर के तौर पर भी, और एक आज जो नई जिम्मेदारी आपको दी जा रही है मानक मित्र की, उसके तौर पर भी। दोनों ही भूमिका आपको अच्छे से निभानी है। तो ये है गोल्ड को समझने की चीजें, समझ गए आप, इसकी प्योरिटी को टेस्ट करना। अब एक छोटा सा फॉर्मूला और देकर जा रहा हूं आपको रेट का। हालांकि BIS का रेट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली आपको ये बता जा रहा हूं। एक फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए या आप चेक कर लीजिए। एक मोबाइल पर अपना कैलकुलेटर खोलेंगे, कैलकुलेटर खोल लिया, उस पर लिखेंगे आज का 24 कैरेट का रेट जो है 76,000, ठीक है। यानी कि 24 कैरेट का रेट लिखेंगे, उसको भाग दे देंगे 24 से, ठीक है। तो क्या आया आंसर? हाँ, ये जो रेट आया है ये आया है 1 कैरेट गोल्ड का, ठीक है। ये सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला है। और आप जिस भी कैरेट की ज्वेलरी खरीद रहे हैं उसमें इसको गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 खरीद रहे हैं तो 22 में, 20 खरीद रहे हैं तो 20 में, 18 खरीद रहे हैं तो 18 में। तो आपके सामने 18, 20 या 22 के अलग अलग रेट आ जाते हैं। तो ये है फॉर्मूला ज्वेलरी खरीदने का, और उनसे आप बार्गेनिंग कीजिए मेकिंग चार्ज में, हमेशा जब भी करते हैं। ये सोच के खुश मत होइए कि उन्होंने 76,000 बताए, 1-2 हजार कम कर लिए, हमने खरीद लिया। पता चल रहा है वो 62-63 हजार की ज्वेलरी है जो आपने 72-74 हजार में खरीद ली। आप उनका एक चाय पी के, समोसा खा के लट्टू हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि भाई बहुत सम्मान करता है, बहुत इज्जत करता है। बाद में 500 और कम दे देते हो तो कम कर लेता है। तो इन चीजों पे नहीं पड़ना है, हमेशा BIS का जो सर्टिफिकेशन है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। हो गई बात। अब हम बात करेंगे CRS मार्क की। जैसा मैंने बताया, CRS मार्क हमेशा इलेक्ट्रॉनिक सामान पर रहता है। तो आप, जैसे मैंने इसकी व्यवस्था बताई चेक करने की, इसी प्रकार से आपको उसको समझना है और उसको चेक करना है, ठीक है। तो ये तीनों मार्क है, और उसमें कंप्लेन का ऑप्शन भी आप देख रहे हैं। नो योर स्टैंडर्ड का एक ऑप्शन होगा कि BIS ने जितने भी स्टैंडर्ड बनाए हैं उसके बारे में वहां पर पूरी जानकारी दी है। तो उसको खोलकर आप देखेंगे, किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे तो उसके बारे में उसका IS नंबर लिखा आएगा कि इसके लिए BIS ने ये मानक बनाया है, ठीक है। उसके बाद उसमें BIS की जो भी लेबोरेटरीज है उसके बारे में बताया गया है, और बाकी चीजें सारी उपयोगी आप खोलकर देख सकते हैं। तो ये है BIS केयर ऐप, ठीक है। इसकी उपयोगिता को आपने समझ लिया है, समझ लिया है ना अच्छे से? कोई क्वेश्चन अभी तक किसी का? ठीक है, देखिए हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बातें आपको आगे चल के बतानी है। अब हाँ प्लीज बताइए। ऐसे जो आपने ज्वेलरी का बनाया है ना, हाँ, तो जो गांव में लोग होते हैं वो बनाते डायरेक्ट खरीदते हैं, तो उसमें तो मैंने अभी तक देखा है और तो उसमें कोई ज्यादा डायरेक्ट। बिल्कुल ठीक है। अब बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी तक इस व्यवस्था को कोई ज्वेलर लागू नहीं करना चाहता, ठीक है। वो इसलिए नहीं लागू करना चाहता कि चूंकि आपको जानकारी नहीं है तो आप मांगते भी नहीं है। तो अब यहां से एक क्रांति पैदा ये होनी चाहिए। आप यहाँ 200 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। पहली बात तो हम आपको 30 लोगों से प्रत्येक को कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप 5-6 हजार लोगों तक पहुंचेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये जानकारी आप उन 5-6 हजार लोगों को देंगे, उनसे ये जरूर रिक्वेस्ट कीजिएगा, ज्वेलरी जब भी खरीदें HUID ही मांगिए। जब मांगेंगे तभी मिलेगी, ठीक है। नहीं तो वो तो ऐसे ही देते चले आएंगे, क्योंकि उसमें उनको मुनाफा ज्यादा होता है, ठीक है। वो आपको 24 कैरेट के रेट पे 18 कैरेट दे रहे हैं, और चूंकि सर्टिफिकेशन की ना कोई जानकारी आपको होती है, कैसे चेक करें, बस एक गारंटी मिल जाती है उनसे कि जब वापस लाओगे तो 85% में वापस ले लेंगे, इस तरह से कुछ गारंटी देते होंगे, या 80 में ले लेंगे, या जो भी उनकी रहती होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, BIS जो इसको सर्टिफाई करता है, जिस कैरेट में करता है, ये उसी कैरेट में रिटर्न हो जाती है बिना किसी कटौती के, ठीक है। तो ये है BIS के सर्टिफिकेशन की व्यवस्था। और कोई सवाल किसी का? प्लीज बताइए। नहीं, इसको बारकोड केवल हमारे CRS नंबर है, केवल उसमें आता है, उसको आप स्कैन कर सकते हैं अपने BIS केयर ऐप से। लेकिन ISI मार्क को आप और HUID को आप, उसकी जो कोडिंग है
उसको BIS केयर ऐप में डालकर ही चेक कर सकते हैं, और कोई व्यवस्था इसके अलावा नहीं है। ठीक है, और कोई सवाल? आगे बढ़े, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वालिटी कनेक्ट ऐप की, क्वालिटी कनेक्ट जो हमारा प्रोग्राम है उसकी तरफ। तो क्वालिटी कनेक्ट प्रोग्राम के बारे में मैं बता दूं, आप सभी युवाओं को एक मौका दिया जा रहा है पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा करने का। ठीक है, कॉलेज में आप एज ए वॉलंटियर बहुत सारे एक्टिविटीज करते होंगे, भाग भी लेते होंगे, लेकिन BIS ने आपको एक विशेष मौका दिया है। इस मामले में आप क्या करेंगे कि यहाँ जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं उसको आपको अन्य युवाओं तक सर्कुलेट करनी है। यहाँ इस सभागार में जितने लोग हैं वो आप सब अवेयर हो जाएंगे, जानकार हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे, लेकिन आपको बाहर जाकर, चाहे बेशक इस कॉलेज में जो लोग इसका हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, आपको उन तक ये बात पहुंचानी है, या जहां अभी एक बार मैं आकाश जी को बुलाऊंगा, वो आपको सर्कुलेट करेंगे कि किस किस वर्क को आपको इसमें शामिल करना है। और भी आप सोसाइटी में भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है इसी कैंपस में रहें, जहां पर आप रहते हैं उसके आसपास जो भी अन्य घर हैं, लोग हैं, लेकिन आपको युवाओं तक ही पहुंचना है। उसका कारण यह है कि युवा वर्ग ही स्मार्टफोन का यूजर रहता है, और ये जो चीजें हैं ये सब टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है, और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग आपको खुद भी सीखना है, उन्हें भी सिखाना है। जैसे अब BIS केयर ऐप मैंने आपको बताया, आपको इंस्टॉल कराया, आपको सोसाइटी में जाके या जिससे भी आप कनेक्ट करेंगे उसको ये BIS केयर ऐप भी इंस्टॉल कराएंगे। ठीक है, और इसको ऑपरेट करना भी सिखाएंगे। जो मैंने आपको एक नंबर दिया था, आपने उसको टेस्ट किया था, स्क्रीनशॉट ले लिया था ताकि आप दोबारा उसको चेक कर सकें? नहीं लिया? चलिए, जो स्मार्ट लोग हैं उन्होंने ले लिया होगा। ठीक है, तो ISI भी चेक कराया और आपको वो भी चेक कराया, आपको उसका स्क्रीनशॉट भी रखना चाहिए ताकि आप उस नंबर को डेमो के तौर पर प्रस्तुत कर सको। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे उसको यहां कर दीजिए। आप बताइए। तो मैं अब आकाश जी को इनवाइट कर रहा हूं। मैंने जनरली जो भी जानकारी है वो सब आपको बताई। अब आकाश जी आपको जो मानक मित्र के तौर पर आपका रोल है उसके बारे में बताएंगे, और कैसे आपको वर्क करना है उसके बारे में आकाश जी अब बताएंगे। थैंक यू सो मच। रह गई जो मैंने आपको ज्वेलरी में तीसरा निशान बताया था, है ना, यूनिक आईडी नंबर 6 अंकों का। तो मैं आपको ये बता दूं, ये नंबर प्रत्येक ज्वेलरी पर अलग अलग होता है, ये किसी पर भी मैच नहीं करता, ये यूनिक इसीलिए है। अगर आपको ऐसा लगे कि ज्वेलर्स ने आपको चेन दिखाई 3-4 तरह की और सब पर एक जैसा नंबर है ना, तो मान लीजिएगा कॉपी पेस्ट हो रहा है और उसको आप उसकी कंप्लेंट जरूर करनी है। ये यूनिक आईडी है, ये बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। अगर लाखों करोड़ों की संख्या में भी ज्वेलरी है पूरे देश में, तो सब पर अलग नंबर ही अलॉट होता है। ये नंबर BIS की तरफ से अलॉट किया जाता है, तब उस पर अंकित कराया जाता है। अगर इस नंबर के कॉपी पेस्ट किया जाता है तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, और ऐसे मामलों में BIS कार्रवाई भी करता है। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा। और जो कैरेट की कोडिंग है उसको मैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ दूंगा, तो मैं उनको व्हाट्सएप पर भेजूंगा, तो आप अलग से किसी कार्यक्रम में उनको सर्कुलेट कर दीजिएगा कि BIS जो प्योरिटी है वो इस कैरेट में इतनी होती है। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन। जी, आप सबको समझ आया सर ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी आप सबको? किसी को और कोई डाउट है? तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको इम्पार्ट करी गई है, ये सेम चीज, सेम इन्फॉर्मेशन आपको आम नागरिक और आप जैसे यूथ को जो अनअवेयर है अभी तक, आपको भी अभी बहुत सारी नई नॉलेज मिली होगी। सेम चीज आपको और यूथ को और अपने आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को और बुजुर्गों को, इनफैक्ट जो भी क्या कहते हैं कंज्यूमर है आपकी फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में। तो मैं आपको मानक जो आज का प्रोग्राम है जिसके लिए आप सब जुड़े हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हर साल 6-6 महीने पे क्वालिटी कनेक्ट कैंपेन करवाता है, जिसमें हम अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं और वहां पर वॉलंटियर्स को एज अ टीम
वर्क करना बताते हैं कि BIS का जो काम है, जो इंडियन गवर्नमेंट इतने टाइम से स्टैंडर्ड्स बना रही है, और उसका इम्पोर्टेंस और उसको डेली लाइफ में यूज करने के लिए जो आम नागरिक अनअवेयर है अभी तक, उनको अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम हम हर 6 महीने पे चलाते हैं। इस समय हम क्वालिटी कनेक्ट कैंपेन 6.0 चला रहे हैं, जिसका अभी तीसरा साल चल रहा है। सो क्वालिटी कनेक्ट कैंपेन क्या है? बेसिकली ये वही है जो अभी सर ने बताया कि जितनी इंफॉर्मेशन आपको भी दी गई है BIS के काम के बारे में, और BIS की जो जैसी भी गुणवत्ता हम क्या कहते हैं इंश्योर करते हैं, जो भी क्वालिटी इंश्योरेंस करते हैं, वो आप एक आम नागरिक को बताइए, ताकि आगे जो भी कंज्यूमर एज अ उपभोक्ता कुछ भी खरीदता है मार्केट में, तो वो चेक करे, CML नंबर डाल के चेक करे, या हॉलमार्क HUID नंबर डाल के चेक करे, कि किसी को कोई चीट ना हो, किसी को कोई क्या कहते हैं, क्योंकि देखो ये सब बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेलमेट भी बिना ISI मार्क का ले रहे हैं, और वो आप खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये हमारी खुद की गलती है कि हमने वो हेलमेट क्यों खरीदा। ऐसी सिलेंडर पे भी बहुत ही क्रिटिकल चीजों पे है, हम घर बनवाते हैं, सीमेंट पे भी ISI होता है। अगर हम उस पर इंश्योर नहीं करेंगे कि हम सही चीज नहीं ले रहे, तब तक हम क्या कहते हैं अपनी खुद की सेफ्टी इंश्योर नहीं कर पाएंगे। तो क्वालिटी कैंपेन कनेक्ट कैंपेन यही है कि आप हर एक आम नागरिक को आपके आसपास, और स्पेशली यूथ को, और उनसे ये भी आग्रह करिए कि आप बाकी यूथ को बताएं, ठीक है। सो दिस इज द मोटो ऑफ क्वालिटी कनेक्ट कैंपेन। मेन ऑब्जेक्टिव यही है जो मैंने अभी आपको बताया। तो एज अ मानक मित्र, मानक मतलब होता है स्टैंडर्ड, और मित्र मतलब एज अ फ्रेंड। तो स्टैंडर्ड के फ्रेंड के फॉर्म में आप क्या कहते हैं सबको इन्फॉर्म करेंगे, और आपको ये इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप देनी है। पहला स्टेप ये है कि आपको जो टी-शर्ट और बैजेस और ये कैप दी गई है, आप ये पहन के ही क्या कहते हैं उनको इंफॉर्मेशन देंगे, जिससे एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी आपके ऐप में। BIS केयर ऐप के अलावा एक और ऐप है, क्वालिटी कनेक्ट कैंपेन ऐप, जो कि आपको अभी जैसे ही आप एनरोल हो जाएंगे, आप सबको क्या कहते हैं आपके मोबाइल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसमें आपका इंडिविजुअल मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, और उस मोबाइल नंबर के रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी इंडिविजुअल ID बनेगी। तो ये आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि आपको ऑन ग्राउंड यही करना है। तो उस ऐप में एक वीडियो प्ले होगी, वो आप जिस भी इंडिविजुअल को दिखा रहे हैं, जैसे जो जो इन्फॉर्मेशन अभी सर ने दी है, वही चीज वो वीडियो के माध्यम से उस पर्सन को दिखाई जाएगी। तो वो आपको प्ले करनी है वीडियो। तीसरा है कि क्या कहते हैं, उसको वीडियो दिखाने के बाद अगर कोई उसे डाउट होता है कुछ भी BIS के काम के बारे में या फिर स्टैंडर्ड के बारे में, उसको आप वो बताएंगे, ठीक है। फिर उसको आप ये भी बताएंगे कि BIS केयर ऐप, जितने भी इंडिविजुअल से आप मिले, उसको BIS केयर ऐप डाउनलोड करवाने के बाद ही आप ये इंफॉर्मेशन बताइएगा। और लास्टली ये ऑब्जेक्टिव है कि आप यूथ को सबसे ज्यादा अवेयर करें, और उसके बाद उनका फीडबैक भी लें कि डिड दे गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ BIS इज। फिर ये काम करते हुए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इंटेग्रिटी मेंटेन करेंगे, बिकॉज this is not something a regular assignment of the college. This is something that the government of India is providing on a ground level basis, that all the citizens of the country should be aware of. And this is a very concerning campaign that the government is providing to the citizens of the country. तो आप इंटेग्रिटी मेंटेन करेंगे, कॉम्पिटेंस मेंटेन करेंगे, जो इस मुहिम का ऑब्जेक्टिव है उसको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो उस पर आपको ध्यान देना होगा, और एक एज ए प्रोफेशनल आपको बताना है। पहले आप खुद अवेयर हो जाइए, आप खुद वो वीडियोस देखिए, और खुद जो अभी सर ने बताया उसको नोट डाउन करिए, और उसको पहले अपने नॉलेज में लाइए। उसके बाद आप जब समझाएंगे तो कोई भी कोई डाउट पूछेगा तो आप और अच्छे से उनको बता पाएंगे। तो ये एक ऐप है हमारा क्वालिटी कनेक्ट ऐप। इसको ये आप हर एक जो भी हमारे वॉलंटियर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके फोन में ये ऐप डाउनलोड होगा, और इस ऐप में आपको क्या कहते हैं अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो प्ले कर दीजिए इसकी, प्रीवियस। तो इस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे,
और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप एक्सेप्ट करेंगे और ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं, ये आएगा। फिर आप इंडिविजुअल को अवेयर कर रहे हैं या एक ग्रुप को अवेयर कर रहे हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल को कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, और फिर अगर आप ग्रुप को एज अ ग्रुप पूरी फैमिली को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं एज अ ग्रुप, तो आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल जो आप करते हैं तो आप उसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे और उसके अभी नेक्स्ट स्लाइड में वो दिखेगा आपको। बट अगर आप ग्रुप को कर रहे हैं तो ग्रुप में आपको एक सेल्फी भी लेनी पड़ेगी कि दिस मच ऑफ पीपल यू हैव मेड अवेयर ऑफ द बीआईएस इंफॉर्मेशन। ये वीडियो प्ले कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो ये है, जब इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं तो आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे, उसका नाम डालेंगे, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, अगर वो कॉलेज में है तो कॉलेज का एड्रेस, और या फिर अगर वो एज अ कंज्यूमर है बस कॉलेज नहीं जाता तो वो उसका घर का एड्रेस। पॉज कर दीजिए। ये इंफॉर्मेशन डालने के बाद नीचे आएगा एक वीडियो प्ले करने का ऑप्शन, जो कि हमारे डायरेक्टर जनरल, जो बीआईएस के डायरेक्टर जनरल हैं श्री प्रमोद कुमार तिवारी सर, वो उनके माध्यम से आम नागरिक को ये एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो आप वो वीडियो प्ले करके दिखाएंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो, सेम वीडियो आपको प्ले करनी है, और उसके बाद जैसी वीडियो खत्म हो जाती है, इनफैक्ट ये नोट करिएगा कि आपको पूरी वीडियो प्ले करनी ही है, तभी आपका एक काउंट जो मिलता है आपको वो काउंट होगा, अदरवाइज वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और आपको जो एज ए वॉलंटियर आपको एक ऑनरेरियम भी दिया जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप उसको पूरा कंप्लीट नहीं करते। तो ये 5 मिनट की वीडियो है, हर एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप को आपको ये दिखानी ही पड़ेगी पूरी की पूरी, तभी वो अकाउंट आपको काउंट मिलेगा। तो मैं वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूं सर। ये वीडियो आप प्ले करेंगे जैसे इंफॉर्मेशन भरते हैं आप। गुड मॉर्निंग। और फुल स्क्रीन कर दीजिएगा। सबसे पहले तो समस्त बीआईएस परिवार की गुड मॉर्निंग और नमस्कार। सबसे पहले तो समस्त बीआईएस परिवार की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी ईमानतों और गुणवत्ता के विषय में चर्चा के लिए आज से मिलेगा। इसके पहले कि हमारे मानक मित्र आपके साथ बातचीत शुरू करें, मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मानकों से शुरू करते हैं। एक उत्पाद या सेवा उपभोक्ताओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित हो और उसे उनकी जो उचित अपेक्षाएं हो उनकी ऊपर पूरी तरह खरे उतरते हुए काम करे। ये सुनिश्चित करने के लिए मानक उसकी मानकीकरण और गुणवत्ता की जांच की प्रक्रिया और उन सभी के संबंध में आवश्यक मानदंड निर्धारित करते हैं। इसका विवरण ये हुआ कि अगर कोई उत्पाद बीआईएस द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार बना है तो एक आम उपभोक्ता आश्वस्त हो सकता है कि उसकी गुणवत्ता में सही रहेगा। अब ये देखना रोचक होगा कि मानकों का दायरा कितना व्यापक है। तो हम इस घर में और आसपास नजर डालते हैं। इलेक्ट्रिक पंखे, टीवी, कंप्यूटर, सीमेंट, स्टील पाइप, कंक्रीट, सरिया, पीवीसी पाइप, प्लाईवुड, स्विच, सॉकेट, स्टील शीट, साबुन, डिटर्जेंट, कमोड, वॉश बेसिन, मोबाइल फोन, हेलमेट, मास्क, सिलेंडर, गैस स्टोव, प्रेशर कुकर, स्टील के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन और बलून, और शहर। ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसके लिए बीआईएस ने मानक नहीं बनाए। कोई वजह दिखती है कि हम बतौर उपभोक्ता की अपेक्षा न रखें। बाजार में जो भी उत्पाद उपलब्ध है मानकों के अनुसार बने होने चाहिए। जहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो जाता है कि एक आम उपभोक्ता को पता कैसे चले कि किसी उत्पाद के लिए मानक है या नहीं। ये काम हमने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। बीआईएस की वेबसाइट पर जाएं, छोटा और छोटी जगह में सिलेक्ट करें। क्योंकि आपको मानक का नंबर नहीं मालूम है, उत्पाद के नाम वाला विकल्प क्लिक करें
और उत्पाद का नाम लिखे, उससे संबंधित मानकों की पूरी सूची आ जाएगी। और आपके मोबाइल फोन पर PIS केयर ऐप की रजिस्टर कर है। हमारे मानक मित्र आपको वेबसाइट और ऐप का डेमो देंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने देख लिया कि एक उत्पाद के लिए मानक है, पर ये कैसे पता चले कि वो उस मानक के अनुसार बना है? ये बहुत आसान है। जो उत्पाद मानक के अनुसार बना हो और इस वजह से प्रमाणित हो, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है तो उस पर CIS चिन्ह, और कोई अन्य उत्पाद हो तो उसके ऊपर ISI चिन्ह लगा होगा और उस चिन्ह के नीचे CML नंबर लिखा होगा। और कहेंगे ये चिन्ह तो कोई भी लगा सकता है, CML नंबर भी लिख देगा। तो जरा मुझे कहने दें कि अगर ऐसा करेगा तो पकड़ा जाएगा। कैसे? PIS केयर ऐप की ओर बढ़ते हैं। इसकी मेन दो फीचर्स हैं। घर में पानी की कोई बोतल हो तो उस पर अंकित CML नंबर को वेरीफाइड लाइसेंस डिटेल्स फीचर सेलेक्ट करने के बाद टाइप कर दें। अगर कोई नंबर पर नहीं है तो सबमिट दबाते ही BIS लाइसेंस का पूरा ब्यौरा आपको स्क्रीन पर होगा। अगर कोई नंबर फर्जी हुआ तो ऐप आपको बता देगा कि इस तरह का लाइसेंस नहीं दिया गया है। मानक मित्र आपको एक सही और खोटी नंबर डालकर भी दिखाएंगे। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद खरीद रहे हो तो ऐप पर आर नंबर अंडर CIS फीचर सेलेक्ट कर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल कर उसकी सत्यता की जांच करें। एक और चीज है जिसे खरीदते समय आप उसकी गुणवत्ता को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। जी हाँ, सोने के आभूषण। जब भी कोई आभूषण खरीदे उसके ऊपर लिखा फॉर्म केवल HUID क्यों देखें। BIS केयर ऐप की स्क्रीन पर HUID को सिलेक्ट कर लें। निर्धारित स्थान पर HUID टाइप कर दें। अगर वो फर्जी नहीं हुआ तो आभूषण का ब्यौरा स्क्रीन पर आ जाएगा। एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी, भारत सरकार ने लगभग 450 उत्पादों के लिए BIS का सर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। तात्पर्य यह है कि उन उत्पादों का आयात, उत्पादन, भंडारण या विक्रय BIS का लाइसेंस लिए बिना और इन उत्पादों पर BIS का क्वालिटी मार्क अंकित किए बिना किया नहीं जा सकता। आपके लिए इन उत्पादों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो क्या इन सभी उत्पादों की सूची ध्यान रखनी होगी? कर रही नहीं। इन उत्पादों की सूची आप BIS की वेबसाइट और BIS केयर ऐप दोनों पर ही देख सकते हैं। अंत में ये जान लें कि कोई उत्पाद अनिवार्य सर्टिफिकेशन की सूची में है तो क्वालिटी मार्क और CML नंबर का उल्लेख हुए बिना ही बिक रहा है। तो किसी उत्पाद पर वर्जिन क्वालिटी मार्क और CML नंबर दर्ज है या आपको किसी उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत है तो आप BIS केयर ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मैं मानक मित्र और आपके बीच से हटने के लिए चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। So this is the entire video that you have to play। जब आप एक इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपको ये पूरी वीडियो प्ले करने के बाद ही आपका एक काउंट मिलेगा। So I will move forward to the next part of the slide। So this is a campaign that the government has provided for the individuals of the college students basically। So हम इसमें एक ऑनरेरियम भी सेट कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स मिनिमम 30 इंटरेक्शन करेगा उसको हम 1500 रुपीज का एक ऑनरेरियम देंगे। अब ये इंटरेक्शन काउंट के बेसिस पे होंगे। जैसे अगर आप 30 इंटरेक्शन करते हैं और ये 30 बार वीडियो प्ले करते हैं और वीडियो प्ले करने के बाद जो भी कंज्यूमर है या फिर जो यूथ है जिसको आप दिखा रहे हैं उनका फीडबैक लेने के बाद एक काउंट आपको ऐड होके दिख जाएगा आपके मेन सेक्शन में। जहां पर लॉगिन करते ही लॉगिन स्क्रीन आती है वहां पर आपके काउंट्स भी दिखेंगे। ये काम करने के लिए आपको हम 3 से 4 हफ्ते दे रहे हैं। अभी हमारा एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे आ रहा है, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को। अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो बच्चा 30 इंटरेक्शन तो कर रहा है उससे ज्यादा भी कर रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है, हम उसको अलग अलग कॉलेज से आइडेंटिफाई करें और उसको एक और बेटर रिवॉर्ड दें जिससे वो और ज्यादा मोटिवेटेड रहे और क्या कहते हैं जो BIS का मुहिम है उसको सक्सेसफुल बनाने में उसको एक सक्षम बनाए बेसिकली। तो ये आपको क्या कहते हैं BIS केयर ऐप सब में डाउनलोड करवाना है सभी से। और
तो मिनिमम 30 इंटरेक्शन जैसे यहाँ पे लिखा है, आपको 45 डेज दिए जा रहे हैं इन टोटल, लेकिन अब मैं यूँ उम्मीद करूंगा कि आप जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करिए, और जो ज्यादा से ज्यादा कर सकता है वो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन मिनिमम 30 करना ही होगा आपको। सो दिस वाज द एंटायर स्लाइड रिलेटेड टू द क्वालिटी कनेक्ट ऐप। आपको अभी हम क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे आप सभी वॉलंटियर्स को, और व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर कोई भी आपको डाउट होगा आप उस पर भी पूछते रहिएगा, और आपकी अभी हम इंडिविजुअली सबकी बैंक डिटेल्स भी लेंगे, सो दैट हम अपनी एक एक्सेल शीट बना लें जिसमें अगर जो जो बच्चे कंप्लीट करते जा रहे हैं हम उनको नोट डाउन करते रहेंगे, एंड आफ्टर 45 डेज वी विल बी ट्रांसफरिंग दी ऑनरेरियम अमाउंट। बट लेट मी जस्ट टेल यू दैट दिस इज नॉट अबाउट ऑनरेरियम, ये हम एक गवर्नमेंट स्कीम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के साथ जुड़ रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनरेरियम तो एक सेकेंडरी थिंग है हमारे लिए। हम एक गवर्नमेंट बॉडी की एक स्कीम को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उस पर हमें फोकस करना है। और ये क्वालिटी कनेक्ट जो कैंपेन है ये हर साल हम लाने की कोशिश करेंगे, और हम इनफैक्ट विक्रांत यूनिवर्सिटी में पिछले 1.5 साल से हम हर बाय हाफ ईयरली हम ला रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज द मोटिवेशन दैट यू गाइस शो टू अस हैज ओनली मोटिवेटेड अस टू कम बैक अगेन एंड अगेन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी आप सब इसी एंथुसियाज्म से इस कैंपेन को आम नागरिक तक पहुंचाएंगे, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हम व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएंगे, और इस पे हम सब आपसे एक दूसरे से बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद और थैंक यू बने रहने के लिए। Important and essential information to our students. After that, we will now proceed with the symbolic T-shirts and cap badges. Students to come forward. 10 students only, and receive. And also, I will call the BIS officials for a photo with the student to capture the symbolic moments. First year BTech CSE students will now perform a Nukkad Natak followed by some inspiring messages. Let's give them a huge round of applause as they take the stage. नुक्कड़ नाटक यहीं पे होगा। 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 नुक्कड़ नाटक। अरे शोर क्यों मचा रखा है, क्या होने वाला है? हमें नुक्कड़ नाटक वाले यहाँ नाटक दिखाने आए हैं, और अपने सभी प्यारे दोस्तों से इसी के बाद आए हैं, उन्हें कुछ नया सिखाने आए हैं। ऐसा क्या सिखाने वाले हो? आज हम असली और नकली में फर्क समझाएंगे। अच्छा, तो फिर स्टार्ट करो। नुक्कड़ नाटक यहीं पे होगा। नुक्कड़ नाटक। देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो। अरे ये क्या हुआ? प्लीज कोई वीडियो नहीं बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा। अरे भाई, आप दोनों का ही एक्सीडेंट हो गया था, पर आप तो बिल्कुल ठीक है। आपको इतनी चोट कैसे आ गई? क्योंकि मेरा हेलमेट कंपनी का था। मेरा हेलमेट भी कंपनी का ही था। नहीं, मेरा हेलमेट कंपनी का था। आपके हेलमेट मेरा नकली है। नहीं। अरे रुको, हम बताते हैं किसका असली है। दिखाओ अपना हेलमेट। तुम भी दिखाओ अपना हेलमेट। क्या तुम्हारे पे IIT का लोगो लगा है? लगा है। तुम्हारे पे लगा था? ऐसा कुछ नहीं होता है, मुझे तो नहीं पता था। हमें तो नहीं दिखता। ऐसा ही होता है, जो चीज असली होती है उसका ISI का लोगो लगा होता है। अगली बार जब लो तब चेक कर लेना, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ये लो। तो देखा आप सबने, जिस हेलमेट पे ISI का लोगो लगा था वो बिल्कुल ठीक थी, और जिस पे नहीं लगा था उनको और चोट आ गई। तो हमेशा ISI का लोगो चेक करके ही हेलमेट ले, वही आपको सेफ रहेगा। चलिए एक और ऐसी कहानी देखते हैं। अरे अनुष्का, क्या हुआ? इतनी साइड क्यों लग रही है? अरे यार क्या बताऊं ना, मैं ना आयरन लेने गई थी। मेरी मम्मी ने मुझसे आयरन मंगाई थी,
लेकिन वो मुझसे रो कपड़े जो प्रेस करवाते हैं। तो क्या हुआ? कल ही ली थी, आज ही खराब हो गई। तू चेक करके नहीं लेकर आई थी? अरे उसमें ना तो करंट आ रहा है ना वो अर्थिंग हो रही है। चेक करके लाई थी, दिखा जरा मुझे। ना तो इस पे लोगो है ना बारकोड है। मैंने चेक किया था उसे अच्छे से, सही से चेक करा कर। जो अपनी चीज होती है ISI का लोगो लगा होता है, बारकोड होता है। अब कुछ अच्छे से लेकर आई हो, मैं दिला के लाती हूँ। ठीक है नाम है, अब मैं ISI का कोड देख कर ही लाऊंगी। देखो आप लोगों ने आजकल आयरन भी असली और फेक आने लगी है, तो हमेशा ISI का कोड और बारकोड चेक करके ही आयरन या कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदे। चलिए अब ऐसी एक और कहानी देखते हैं। अरे दीदी जरा फोन पे ना हेलो हेलो हेलो, जरा तू इधर आ जाएगी? हाँ भाई बोल, कहाँ आना है? बस मेरे साइड आ जाओ, मेरे घर। और बहन बढ़िया, और बताओ क्या चल रहा है? बस सब बेकार चल रहा है। अभी मैंने 2 दिन पहले बैटरी खरीदी थी, अपने फोन में लगानी थी। आपसे कुछ बैटरी हैंग मारने लगी और हीट भी प्रोड्यूस कर रही है। क्या नहीं हो रहा है? क्या दिखाओ जरा। आपने बैटरी देखकर ली थी? बैटरी में क्या देखना होता है? अरे बहन तुम्हें नहीं पता फेक बैटरी बनाई जा रही है आजकल? अच्छा, फेक बैटरी बनती है? हाँ बिल्कुल, उसमें CRS का कोड था। ये तो मैंने नहीं देखा। अभी चेक कर लेते, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब फेक ही थी? हाँ बिल्कुल, इसमें बैटरी में CRS का कोड देखा जाता है। इलेक्ट्रिकल कोई भी चीज लेते हो उसमें CRS का कोड होता है, उसके नीचे एक बारकोड भी दिया जाता है। उसमें डालकर तो BIS ऐप में डाल के उसे तुम चेक कर सकते हो। अच्छा, ऐसा भी होता है? अपने बारे में चेक करके बिल्कुल, आगे से देख कर लिया करो। अभी दिखाए गए हेलमेट, आयरन और बैटरी की तरह और बहुत सी रोजमर्रा में इस्तेमाल करने वाली चीजें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन पर ISI का कोड या CRS का कोड लगा होता है, तो उसको चेक करके ही लिया जाए। और तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे। थैंक यू। बंद करो भाई, बंद करो। ये प्रोडक्ट बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो। ये प्रोडक्ट बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो। ये प्रोडक्ट बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो। ये प्रोडक्ट बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो। तमाशा देखो भैया, लेकर आए नाटक भैया। नाटक भैया, नाटक भैया। ढोल लगा के भैया, कम लगा के भैया। आज स्वयं नया दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? असलियत दिखाने आए या मिलकर समझाने आए हैं? असलियत दिखाने आए हैं, मिलकर समझाने आए हैं। तू सोच बदल लेगा, हम ऐसी बात बताने आए हैं। तू सोच बदल लेगा, ऐसी बात बताने आए हैं। तू सोच बदल लेगा, हम ऐसी बात बताने आए हैं। तो आओ देखो नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, यही पे होगा नुक्कड़ नाटक। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नुक्कड़ नाटक में। आज के नुक्कड़ नाटक का नाम है फेक प्रोडक्ट। तो हमारे सामने पेश होने जा रहा है सीन नंबर 1। हमारे मोड़ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। राम राम ताऊ। और क्या हाल है? हाल कभी में बड़ी टेंशन है। क्या बेटा, कैसी टेंशन है? एक तो लगा भाव बड़ी मनोतन से पैदा भाव, बहू अगर बीमार है। काय खाओ? डॉक्टर ने फूड पॉइजन बताई। फूड पॉइजन? कब आते तुम्हारा? आ चुका बेचारा 6 महीना को। ये मैं घर से दूध लेके आती, बेटा तो कब लेके आई। नहीं ऐसे यार, इतना बड़ा फर्जी आदमी वो। बेटा सबसे पहली बात तो ये कि पैकेट की हर एक चीज बढ़िया हो, ये जरूरी चाहिए। ठीक है, अब पैकेट की चीज तुम जो देख के आ रहे और मैं तुम जैसे दूध लेके आए, तो दूध में तुमको हमेशा FSSAI को मार्क और उनको लाइसेंस नंबर देखने। भाई साहब लाइसेंस नंबर भी रख हो सकते, तो तुम BIS के जो मोबाइल ऐप पे वहाँ पे जाके इन चीज़ों को डाल के देखो और इन चीज़ों के बारे में सजग रहो, जागरूक रहो। और बच्चा की टेंशन ले लो, भैया की कृपा से सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, आगे से चीज़ को ध्यान रखियो और हमेशा अच्छी चीज़ें लो, अच्छी चीज़ें बच्चों को खिलाओ। ठीक है, GMI की। अब आपके सामने प्रस्तुत है कहानी नंबर 2। और मोहित भाई कैसे हो? ठीक है यार, मत पूछो तुम।
आजकल तुम इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं कर रहे। तुम्हारे बात देख के समझ जाओ। का या तो का होएगा। अरे बनी अपनी पड़ोस वाली भाभी। हाँ। उन्हें हमें तेल लाओ तो एक। अच्छा। वहाँ का तेल था बासी, मेड हुआ आदिवासी। तो वहाँ तेल हमने अपने हाथन में लाओ तो वहाँ में देखो कि तेल लगा गाड़ी का ऑयल ज्यादा निकलो। तो वहाँ तेल अपने बालों में लगाए तो हमारे बाल गाड़ी के सोकर जैसे हुआ है। और जब हम ऐसे ऐसे करते हैं ना तो हमारे बाल बड़े मटकते हैं। अच्छा। तुम बताओ हम करे तो करेगा। अरे भाई साहब हम का बताऊं मैं, हमारे संगे क्या तो फ्रॉड होएगा। ले हो का हो। अरे YouTube पे स्पॉन्सर वीडियो देख के हमने अपने डैंड्रफ के काजे एक शैम्पू तो खरीद ला तो पर वह डैंड्रफ तो कम नहीं हुआ, बाल झड़न लगे और खुजली होने लगी। अब एक हाथ हमारा पॉकेट में रहे तो एक सर पे खुजाता ही रहे। हाँ भाई साहब जाने क्या करें हम। नहीं अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं। क्या भैया कहाँ आ रहे हो? हम नहीं भैया अरे ऐसे कौन से कर्म कर रहे हैं मुँह छुपाने पड़ रहे हैं। चेहरे को क्या हुआ तुम्हारा? क्रीम कैसी क्रीम थी वो? तभी तुम्हारे चेहरे पे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ हो चुका है। अरे राम राम चाचा। राम बेटा तुमसे बात कर ले पहले। आ जाओ। तो बेटा कौन सी क्रीम लाई थी तुमने और कितने की लाई थी? 1000 पैसा की लाई थी। 1000 पैसा? 10 रुपया क्या तो सीधी सीधी 1000 पैसा। हाँ तो ऐसा कौन सी क्रीम लाई, कौन सी लाई थी? गुड्डू भैया की दुकान पे से लाई थी वो क्रीम हमने। गुड्डू भैया ने क्या क्रीम लगाई तुमको? अरे भैया तुम अपनी बता दो पहले तुमने क्या लो तो? हमने ला तो तेल बाको नाम था वासी मेडवाई आदिवासी। कितने की सीसी लाई थी? पूरे 1400 की पड़ी थी हमें। देखो बेटा वहाँ में। अरे बाकी सीसी एक नंबर थी। बाकी सीसी एकदम नई नवेली धोने की तरह लग रही है। बेटा आरपीएल चीज सोना नहीं होती। ए चाचा समझ रहे, कुछ और भी हो सकता है। समझ रहे। और तुम बता दो अपनी। हम का बताओ चचा, हमने तो 300 रुपया की 3 बोतलें शैम्पू की खरीदी थी। हाँ ऑफर में खरीदी थी। ठीक है। हाँ अब देखो जहाँ भी तुम्हारी 3 कंडीशनें आ गई। सबसे पहले भाई साहब तुम चले गए पैसे के चक्कर में गए। 70 रुपया की चीजें बढ़िया है, पैसे बचाओ, क्वालिटी का क्या होता है नहीं। और तुमको लगी क्या पैसा की चीज है अच्छी होगी, तुमने यूट्यूब पे देखी होगी, तुम्हें पता हो जो यूट्यूब पे स्पॉन्सर कर रहे हैं इन चीज को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसकी तुमने ऑफर देखो कि 100 रुपया की बोतल है और 3 इकट्ठी मिल रही है ना तो बाद में महंगी पड़े। ऐसा अगर तुमने एक बोतल खरीदी 100 रुपये तो जाते, तुमने सीधे ऑफर में फिसल गए। अब इन चीज़ों को ध्यान रखो यार, कोई की बात पे कहने पे ऐसे इन्फ्लुएंस ना हो करो, ठीक है। कोई चीज़ की जानकारी लो पूरी, तब बाकी संगे वह चीज़ को लो। हर चीज़ की परख करके चीज़ें लेने चाहिए, ठीक है। अब जिस चीज़ को याद रखियो और आगे से चीज़ के बारे में बाकी लोगों को भी बताइए, ठीक है। जय सिया राम। और किस तरह कंपनियों के ने इनको तेल लगा दिया और किस तरह कंपनी के ऑफर्स पे ये तेल की तरह रपटते हुए चले गए। आप इन चीजों से इन्फ्लुएंस ना हो, बीएएस के मानकों का ध्यान रखें। इसी संदेश के साथ अपने नुक्कड़ नाटक की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ऑडिटोरियम का माहौल जो है काफी अलग टाइप का लग रहा है। अगर कोई यहाँ से ग्रुप फोटो ले तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हो। आपके सिर पे ये जो कैप है, ये कैप लगाने में अपने आप में प्राउड फील हो रहा होगा। आज इस कार्यक्रम में पधारे बीआईएस की तरफ से सभी अधिकारीगण, जिन्होंने हमारे बच्चों को भारत सरकार के एक ऐसे मुहिम से कनेक्ट किया, एक ऐसे मुहिम से जोड़ा जो अपने आप में इन बच्चों को काफी जो है गर्व का अनुभूति जो है करा रहा है। वर्मा साहब ने जिस तरीके से आप सभी को एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को जांचने का तरीका बताया, आप सभी के मोबाइल फोन पे ऐप इंस्टॉल करवाया, नो डाउट सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आज के इस कार्यक्रम के बाद में, बल्कि अभी से ही आप सभी लोग मानक मित्र के रूप में अपने अपने क्षेत्र में, जैसा यादव जी ने बताया कि आपको जो है कितने कनेक्टिविटी को परफॉर्म करना है, कितने लोगों को अवेयर करना है, मिनिमम काउंट भी आपको बताया।
लेकिन प्यारे बच्चों, ये काम करने से पहले आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें। आधी अधूरी जानकारी लेकर कहीं पर भी अगर जाएंगे तो अभी आपने जिस कैप को लगाया है उसका सम्मान भी आप ही को करना है। और मैंने अभी देखा कि हमारे 2 अलग अलग ग्रुप्स ने जो है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक मैसेज दिया। वो मैसेज अपने आप में बहुत अच्छा था। ग्रामीण क्षेत्र के भाषा का प्रयोग करते हुए कुछ एक ऐसा मैसेज दिया जिससे चीजों की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, अगर हम गुणवत्ता वाली चीजें यूज नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है। बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने पूरा रिप्रेजेंटेशन किया। बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पूरी टीम जो इस कार्यक्रम को सक्सेस बनाने में सहायक सिद्ध हुई है, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और सबसे लास्ट में मेन इवेंट अभी बाकी है। जैसा कि मैडम ने अनाउंसमेंट किया कि आपको इस ऑडिटोरियम में बड़े ही अनुशासित ढंग से, जैसा प्रमोद सर गाइड करें उस तरीके से आपको बाहर निकलते हुए एक मैराथन, अपने कैंपस का एक राउंड लगाना है। निर्धारित ट्रैक है और उस ट्रैक पे निर्धारित समय सीमा में अपना मैराथन कंप्लीट करके पूरे कैंपस में ये सभी मानक मित्र उन बच्चों को भी एक मैसेज देंगे जो मानक मित्र बनने से चूक गए हैं। आई थिंक कैंटीन के सामने इसका कंक्लूड करेंगे हम लोग। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपसे कहना चाहूंगा, अभी जो नाटक किया बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस था, नो डाउट, लेकिन कुछ चीजें थोड़ा सा अपडेट करूंगा मैं आपको कि जैसे गर्ल्स ने किया था तो वो बोल रहे थे कि ISI का लोगो ये देखना है, तो लोगो नहीं बोलना है उसको, ISI मार्क बोलना है हमेशा। ISI मार्क देखना है और अधूरा मार्क नहीं देखना है। ऊपर IS नंबर, नीचे CML नंबर, वो है पूर्ण मार्क। तो ये ध्यान रखिएगा, लोगो मत देखिएगा, मैंने कहा था आपको। और दूसरा, बॉयज अभी परफॉर्म कर रहे थे, वो क्रीम पाउडर की बात कर रहे थे, तेल की बात कर रहे थे। तो मैं आपको अपडेट कर दूं कि क्रीम पाउडर तेल पर ISI मार्क नहीं होता है। तो थोड़ा सा आगे जब आप नाटक तैयार करें तो इस तरह की चीजें रखें। हेलमेट रखा, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हेलमेट रखा, उस पर ISI मार्क होता है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन वो लोगों की बात हो रही थी तो मुझे थोड़ा लगा कि बच्चों में ये सुधार होना चाहिए, तो ये मैंने किया। थैंक यू सो मच।